2022 to તમે all આવતા present જતા here. રહેજો કારણ કે કલાક નહીં પડે. Please allow me to present a brief about the session. Sanskrit, which is one of the most ancient known language amongst all the great languages of the world. This language is the true symbol of the great Indian tradition and thoughts, which has exhibited full freedom in the search of the truth. It is also called Devavani, that is, language of gods. It is also recognized as the mother of all Indian languages. And this is believed that Brahma introduced this language to the sages of celestial bodies. Sanskrit language came from Indo-European language family of Indian subcontinent, and the term Sanskrit is derived from the adjoining of prefix samam means samyak, that means entirely, and krit, which means done. Thus the name indicates entirely done in terms of communication, reading, hearing, and the use of vocabulary in expression of the emotion. An extremely complex language with a vast vocabulary, this is still extensively used in today's world to read the sacred text and hymns. NEP 2020 lays a lot of emphasis on mainstreaming of Sanskrit and introducing Indian knowledge system to the students. To grace today's occasion in this wonderful event, I am delighted to state that we have with us Padma Shri Jammu Krishna Sastri Ji, who is Chairman of High Bar Committee for Promotion of Indian Languages, Ministry of Education, Government of India. He had been a member of the Grant and Aid Committee under MHRD Government of India and associated with NCERT, Central Board of Secondary Education, and various state boards in concern with Sanskrit education. He has authored many books in Sanskrit language, to name a few: Saudhana Shya, Uttishtamas Swapata, Parishkaraha. There are a number of awards and accolades to the credit of Sri Jammu Shastri Ji. And to name a few: Padma Shri, Rashtriya Yuva Puraskaram, Saraswat Sudhakara. We a heartily welcome to you, sir. Next speaker for today's session is Professor Malhar Kulkarni Ji from Indian Institute of Technology, Bombay, who has joined us through virtual mode. He is the professor at Department of Humanities and Social Sciences, IIT Mumbai. His research interests are Sanskrit language, Paninian grammar, and philosophy of languages. He is the specialist in Paninian grammar, and he has worked on Sanskrit WordNet. He has published many journal papers, proceedings, and book chapters. A very warm welcome to you, sir. The convener for today's session is on Dr. Lalit Kumar Patel Ji, Honorable Vice Chancellor, Somnath Sanskrit University, Varanasi. His field of research in Sanskrit is Alankara Sastra, and he has published many research papers, and he has vast experience in research of Sanskrit language. May I take this honor to invite convener for today's session to take this session further and hold the baton from me. Please, sir. A very warm welcome. रीत्या संलग्नाः सन्ति IIT इत्यस्य प्रोफेसर् पदम् अलङ्कुर्वाणाः प्रोफेसर् मल्हार् कुलकर्णी महोदयाः अत्र विराजमानाः मम पार्श्वे सन्ति संस्कृत बोर्ड गुजरात इत्यस्य अध्यक्षाः जयशंकर रावल महोदयाः श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कार्यकारिणी सदस्याः
अन्ये च संस्कृतस्य विद्वांसः अत्र समुपस्थिताः सन्ति। ते सर्वे अपि सर्वान् प्रणम्य अद्य यः विषयः अस्माकं वर्तते यद् राष्ट्रीयशिक्षानीति 2020 तथा च भारतीयज्ञानपरम्परा इंडियन नॉलेज सिस्टम तत्र अस्माभिः संस्कृतविषये किं किं करणीयं के मुख्यरूपेण अस्माकं विचारणीयाः बिन्दवः सन्ति तेषां विषये अत्र मार्गदर्शनं कर्तुम् अस्माकं मध्ये द्वौ वक्तारौ उपस्थितौ स्तः। किन्तु आदौ अहं भूमिकारूपेण किञ्चित् तत्र वक्तुम् इच्छामि। नूतन राष्ट्रीय शिक्षानीति मध्ये के तादृशाः बिन्दवः सन्ति तान् प्रति अहं सर्वान् किञ्चित् वक्तुम् आकर्षयितुम् इच्छामि। मम प्रेजेंटेशन् अस्ति तत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः। यस् सर्वप्रथमं तु सरलमानकसंस्कृतम् इत्यस्य उल्लेखः राष्ट्रीयशिक्षानीतौ अपि कृतः वर्तते यत् संस्कृतं संस्कृतमाध्यमेन पाठनीयं यानि शास्त्राणि सन्ति तेषां शास्त्राणाम् अध्ययनं संस्कृतमाध्यमेन कथं भवेत् तदर्थम् अपि राष्ट्रीयशिक्षानीतौ स्पष्टरूपेण उक्तं यत् सरलमानकसंस्कृतेन शास्त्राणाम् अध्ययनं भवेत्। माध्यमभाषा संस्कृतं भवेत्। यथा आङ्ग्लम् आङ्ग्लभाषया पाठ्यते, हिंदी हिंदी भाषया पाठ्यते, रशियन भाषया पाठ्यते, तथैव संस्कृतस्य पाठनम् अध्यापनं संस्कृतमाध्यमेन भवेत् इति तत्र स्पष्टरूपेण उक्तम्। यथा गतसत्रे अपि चर्चा आसीत् यथा गुणशब्दः तर्हि कस्मिन् अर्थे तस्य सन्निवेशः भवति। प्रायः संस्कृते बहवः शब्दाः अनेकार्थकाः सन्ति। यथा हरिः शब्दः अनेकार्थकः, कपिः अर्थः, विष्णुः अर्थः, सिंहः इति अर्थः, तर्हि तादृशानाम् अनेकार्थकानां शब्दानाम् एकस्मिन् अर्थे यदि सन्निवेशः कर्तुं कश्चित् टेक्स्ट् भवद्भिः पठनीयम् इति अग्रे अपि भारतीयज्ञानपरम्परायाम् अपि अस्माभिः चिन्तितं। किन्तु तथैव शास्त्राणां ज्ञानम् अपेक्षितं। यदि शास्त्राणां ज्ञानं न भवति चेत् स शङ्खचक्रो हरिः तत्र हरिशब्द विष्णु अर्थे कथं नियम्यते एतद् सर्वं शास्त्राणाम् अस्माकं भाष्यपरम्पराः सन्ति। तर्हि सर्वेषु शास्त्रेषु परम्परा ज्ञानपरम्परा वर्तते, दर्शनशास्त्रे अपि साहित्यशास्त्रे अपि। किन्तु तत्र ये निर्दिष्टाः सिद्धान्ताः सन्ति तेषां सम्यक् अवगमनं संस्कृतमाध्यमेन एव भवितुम् अर्हति। अतः राष्ट्रीयशिक्षानीतौ अपि अयं बिन्दुः विचारणीयः भवति। द्वितीयः अस्ति बहुविषयकत्वम्। इदानीं भारते 18 संस्कृत विश्वविद्यालयाः यूनिवर्सिटीस् सन्ति। तर्हि तत्र बहुविषयकता कथम् आगच्छेत् तस्मिन् विषये अपि एते मार्गदर्शनं करिष्यन्ति। केवलम् आधुनिककाले संस्कृतं स्वीकृत्य एव उद्योगिता कुत्रापि न लभते। तेन सह आधुनिकविषयाणां कथं सन्निवेशः कथं सम्बन्धः भवेत् तथैव कथं विश्वविद्यालयेषु पाठनम् अस्माभिः करणीयं तस्मिन् विषये अपि मार्गदर्शनम् अत्र एते करिष्यन्ति। नवाचार विषये, गुणवत्तायुक्त शिक्षण विषये, संशोधन विषये, पुनः संस्कृतेन कुत्र कुत्र उद्योगावसराः वर्तन्ते तेषां विषये एते मुख्यबिन्दवः सन्ति। अद्य चिन्तनीयाः बिन्दवः तस्मिन् विषये वयं विशदरूपेण चर्चामपि करिष्यामः, मार्गदर्शनम् अपि प्राप्स्यामः। किन्तु श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य परिपाटी द्वयं सक्सेस् स्टोरीस् द्वयं वर्तते। एकं तु सर्वत्र संस्कृतमयता, शैक्षणिक क्रियाकलापेषु संस्कृतं, शिक्षणेतर क्रियाकलापेषु अपि संस्कृतं कथं भवेत् तदर्थम् अस्माकं विश्वविद्यालय इदानीं प्रयतते। एवञ्च द्वितीयं वर्तते गुणवत्तायुक्त ग्रन्थप्रकाशनं तेन सह संशोधनम्। अस्मिन् विषये एव एते विचारणीयाः बिन्दवः सन्ति। तान् विषये अत्र आदौ अहं निवेदयामि। मान्याः चमुकृष्णशास्त्री महोदयाः भवन्तः सादरं सगौरवम् अस्माभिः प्रार्थ्यन्ते यत् भवन्तः अस्मिन् विषये अस्मान् उद्बोधयन्तु उपकुर्वन्तु इति निवेदनं। धन्यवादः। तस्मात् पूर्वं विश्वविद्यालयस्य प्रकाशनद्वयमस्ति, तस्य झटिति वयं लोकार्पणं कर्तुम् इच्छामः। सोमज्योति इति एकम् अस्माकं मुखपत्रं डिसेम्बर् मासपर्यन्तं यद् विश्वविद्यालयेन कृतं
तस्य त्रिमासिकी पत्रिका इयं वर्तते तस्य शोध ज्योति इति अस्माकं विशिष्टः रिसर्च जर्नल वर्तते तस्य द्वितीय अङ्कस्य लोकार्पणं तथैव त्रैमासिकी एका पत्रिका न्यूज लेटर वर्तते सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य तस्यापि लोकार्पणम् इदानीं जायमानं वर्तते लोकाय अर्प्यते धन्यवादः अनुगृहीतोऽस्मि इदानीं मान्यः शास्त्रीवर्याः प्रार्थ्यन्ते भवन्तः स्वकीयान् विचारान् अत्र प्रस्तुतं कुर्वन्तु मान्याः अहं संस्कृतेन अवश्यं वदामि परन्तु मध्ये मध्ये इंग्लिश हिंदी भाषया अपि वदेयम् स्लाइड्स् यानि तत्र भवन्ति तानि इंग्लिश मध्ये सन्ति विशेषतया अत्र एषः अवसरः कल्पितः वक्तुं तदर्थम् अहं धन्यः अस्मि विषयः दत्तः आसीतेव प्राचीना आधुनिका च भाषा इति परन्तु तेन सह अहम् अन्यमपि विषयं योजितवान् चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस ये भी मैं जोड़ दिया क्योंकि वो ही आज ज्यादा प्रस्तुत विषय है। संस्कृत के बारे में तो सब लोग जानते हैं, सर्वे जानन्ति, परंतु अद्य कानि चैलेंजेस सन्ति, पन्थाह्वानानि सन्ति, स्पर्धाह्वानानि सन्ति, तेषाम् उत्तरं कथं दातव्यं तत् अधिकं प्रस्तुतम् अस्ति। अहं श्रुतवान् यत् गुजराते सर्वत्र संस्कृत विद्यालयेषु सोमनाथे महाविद्यालये च छात्राः अध्यापकाः सर्वे वर्चुअल माध्यमेन यूट्यूब माध्यमेन पश्यन्तः सन्ति, शृण्वन्तः सन्ति इति अहं ट्वीट अपि कृतवान्। देशे विदेशे अपि जनाः अद्य यूट्यूब मध्ये एतत् भाषणं शृण्वन्ति। मम भाषणस्य लक्ष्यभूताः जनाः, आप यहाँ ज्यादातर प्राध्यापक दिखते हैं, कुछ छात्र भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा अभी संबोधन का लक्ष्य प्राध्यापक नहीं, संस्कृत छात्र और अभिभावक, हाँ प्राध्यापक भी हैं, लेकिन आज प्राध्यापकों की, संस्कृत प्राध्यापकों की बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि सभी प्राध्यापक सिक्योर्ड लाइफ बिता रहे हैं। ऑल ऑफ यू, आप सबका लाइफ सिक्योर्ड है, परमानेंट जॉब है, वेतन मिलता है, लेकिन चिंता का विषय जो हमारे छात्र है ना, उनका भविष्य क्या है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। हमारा हर एक चिंतन, अगर पाठ्यक्रम चिंतन हो, भविष्य चिंतन हो, योजना हो, महाविद्यालय हो, पाठन पद्धति हो, छात्र केंद्रित चिंतन होना चाहिए, न प्राध्यापक केंद्रित चिंतन। प्राध्यापक केंद्रित योजना नैव, छात्र केंद्रित योजना करणीया। प्रथमः विषयः हम सबको ये आने वाले दिनों में ध्यान देना चाहिए। जैसे विषय दिया गया, संस्कृत is an ancient classical language by its antiquity and history of thousands of years, but at the same time it is modern Indian language by its relevance, contemporary use and constitutional provisions.
8वीं सूची में 22 भाषाओं में संस्कृत भी है, तो 22 भाषाएं भी वहां आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं। अन्य क्लासिकल लैंग्वेजेस 8वीं सूची में नहीं है। इसलिए संस्कृत में ये मॉडर्न लैंग्वेज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का भी यहां उल्लेख किया। फिर इट इज नॉट जस्ट अ लैंग्वेज, केवल एक भाषा नहीं, ये इस धरती का जीवन दर्शन है। संस्कृत वाङ्मय यानी इस भूमि का जीवन दर्शन। इट इज द जीवन दर्शन ऑफ दिस लैंड, पिवटल फॉर द यूनिटी एंड हार्मनी ऑफ द सोसाइटी। अभी तक भारत में अगर एकता और एकात्मता रही है वो संस्कृत के कारण, लेकिन आप जानते हैं आजकल लिंग्विस्टिक्स के प्राध्यापक, एक्टिविस्ट, ये सब डाइवर्सिटी का बात करते हैं, लैंग्वेज डाइवर्सिटी का बात करते हैं। हाँ, डाइवर्सिटी है, विविधता है, लेकिन हम बचपन से विविधता में एकता ये सुनते आए हैं। हम एकता देखते हैं विविधता में। एकता के बिना केवल विविधता नाश में, आपस में संघर्ष में अंत होगा। सो पिवटल संस्कृत is the pivotal reason for the unity and harmony of the society, primary contributor for all inclusive culture of भारत। आज भारत इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव कल्चर है, सर्व समावेशक संस्कृति है। इसमें मुख्य कारण संस्कृत भाषा है। आनो भद्राः यन्तु कृतो विश्वतः कृण्वन्तो विश्वमार्यं वसुधैव कुटुम्बकम, आदि आदि जितने भी बातें हैं इंक्लूसिव बातें, वो सब संस्कृत का देन है। A great repository of Indian knowledge system and a soft power with the motto of कृण्वन्तो विश्वमार्यं वसुधैव कुटुम्बकम। सारे दुनिया में भारत का सॉफ्ट पावर के नाते संस्कृत भाषा और संस्कृत वाङ्मय में जो ज्ञान निहित है ये है। तो दिस इज अबाउट द यूनिक फीचर्स ऑफ संस्कृतम। नाउ आई हैव ए क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। आप सबसे एक प्रश्न है, आप में से एनईपी 2020 पहला वाक्य से अंतिम वाक्य तक पढ़े हैं पूर्णतः, कंप्लीटली मैं पढ़ा हूं, ऐसे लोग कौन कौन है? हाथ उठाइए। 4-5 मिलते हैं, ठीक है। एक विजन एंड रोड मैप फॉर डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत 10-year पर्सपेक्टिव प्लान, ये एक है, डॉक्यूमेंट है शिक्षा मंत्रालय के। इसको शुरू से अंत तक पढ़े हैं कौन कौन है? ये भी 5-6 लोग मिलते हैं। देखिए, पिछले 10-20 सालों में या फर्स्ट संस्कृत कमीशन आने के बाद, अगर उसके बाद संस्कृत के संदर्भ में यदि अत्यंत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट अस्ति, एतत् डॉक्यूमेंट द्वयम्, एकं विजन एंड रोड मैप, द्वितीयं एनईपी 2020। एनईपी 2020 मध्ये संस्कृत विषये यत् उक्तं तत् अद्य पर्यन्तं तावत् विद क्लैरिटी अन्यत्र कुत्रापि न उक्तं। सामान्यतः सभी भाषा के एनईपी में भाषा के संदर्भ में कहा क्या बताया, इसकी चर्चा करते हैं। चौथा अध्याय में 15वां पैराग्राफ और 22वां अध्याय में 23वां अध्याय में 18वां अनुच्छेद, ऐसा कुछ 2 पैराग्राफ के बारे में सभी ज्यादा उल्लेख करते हैं। परंतु आरंभतः अंतपर्यंतं यावन्तः विषयाः उक्ताः सन्ति तस्य सर्वस्य अपि संस्कृत शिक्षणे तस्य
प्रतिफलनं भवति, परिणामः भवति। इदानीं तत्र रिसर्च विषये उक्तमस्ति, डिस्टेंट एजुकेशन विषये उक्तमस्ति। भिन्न भिन्न अध्यायाः, ये 25-26 अध्यायाः सन्ति, प्रति अध्यायं ये विषयाः उक्ताः तेषां सर्वेषाम् अपि विषयाणां डायरेक्ट सम्बन्धः संस्कृत शिक्षणस्य अपि अस्ति। केवलं तत्र स्कूल एजुकेशन मध्ये 3 लैंग्वेज फार्मुला मध्ये संस्कृतमस्ति इति एक एव विषयः इति मा चिन्तयतु, अथवा संस्कृत विद्यालयः मल्टीडिसिप्लिनरी भवेत् इति यत्र उक्तमस्ति तदेकमेव इति मा चिन्तयतु। अन्ये अपि बहवः विषयाः तत्र ये उक्ताः तेषां संस्कृत शिक्षणस्य महान संबंधः अस्ति। एतावत् पर्यन्तम अभी तक संस्कृत के लोग, मैं भी संस्कृत का आदमी हूं, मैं अंदर से हमारे समूह के परिवार के अंदर के एक सदस्य के नाते अब बता रहा हूं, हम भाषण करते बैठे थे, अभी तक डिमांड करते बैठे थे। सरकार के पास डिमांड, राज्य सरकार के पास डिमांड, केंद्र सरकार के पास डिमांड। अभी आने वाले दिनों में डिमांड हमें नहीं करना चाहिए। पहले जिस प्रकार संस्कृत के लोग अपने कर्तृत्व से, विद्वत्ता से समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त किए थे, अभी फिर से हमें हमारी विद्वत्ता, कर्तृत्वता, इससे ही हमें फिर से संस्कृत को आगे लाना चाहिए, हम भी आगे आना चाहिए। तर्हि एषः इदानीं क्रियायाः समयः, कार्यस्य समयः, न तु भाषणस्य, न तु अभियाचनायाः इति एतदपि चिन्तयामः। अस्माभिः अस्माकं कार्ययोजना कथं भवेत् इति भवन्तः तत् विजन एंड रोड मैप पठन्ति चेत् बहून् अंशान् भवन्तः ज्ञास्यन्ति। तत्र किं किं स्ट्राटेजी रूपेण लिखितमस्ति इत्यादि। तर्हि तत्र इदानीम् उदाहरणार्थं संस्कृतज्ञानाम् एकं महत् डिमांड भवति। संस्कृत शिक्षण को अनिवार्य करना चाहिए, पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक अनिवार्य करना चाहिए। सभी हम सब डिमांड करते हैं। मैं उस पक्ष में नहीं हूं, अनिवार्य पक्ष में नहीं हूं, और एनईपी में भी अनिवार्य का बात नहीं है, ऑप्शन फ्लेक्सिबिलिटी का बात है। छात्रों को ऑप्शन देना चाहिए, वो जो चाहे वो ले। इतः परम कल्पनां करोतु स्म जानन्तु संपूर्ण भारतदेशे विद्यमानाः संस्कृतज्ञाः जानन्तु यत् इतः परं नेक्स्ट 10-20 इयर्स मध्ये 30 इयर्स मध्ये कदापि अनिवार्यं न भविष्यति। तर्हि यदि संस्कृत शिक्षणम् आकर्षकं करोति तर्हि जनाः पठिष्यन्ति। तत् आकर्षककरण कार्यं प्राध्यापकानाम् अस्माकम् अस्ति। यदि वयं संस्कृत शिक्षणम् आकर्षकं न करिष्यामः अस्माकं कथा अपि समाप्ता भवति, संस्कृतस्य कथा अपि समाप्ता भवति। निश्चितमेव अनिवार्यम् इतः परं नैव भविष्यति, नैव भविष्यति, नैव भविष्यति। आकर्षकं करोति वा? संस्कृतम् आकर्षकं कथं करणीयम्? पाठन पद्धति द्वारा आकर्षकं कर्तुं शक्यते, भाषायाः सरलता द्वारा आकर्षकं कर्तुं शक्यते, टीचिंग टूल्स द्वारा आकर्षकं कर्तुं शक्यते, टेक्नोलॉजी द्वारा आकर्षकं कर्तुं शक्यते।
यूटिलिटी ऑफ द कोर्स तद्वारा आकर्षकं कर्तुं शक्यते। आगे मत जाइए, मैं बताता हूं, पीछे आइए, और भी पीछे आइए। हाँ, मैं बताता हूं तब। आकर्षकं करणीयम्। इधर पश्यतु, एनडीपी 2020 विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय लेटर एंड स्पिरिट। ये निश्चित रूप से होने वाला, अवश्यम भावी। There is no escape or other option for संस्कृत टीचर्स एंड प्रोफेसर्स। ध्यान में रखिए, उदाहरण के लिए एनईपी 2020 में कहा उक्तमस्ति यत् all संस्कृत language universities and language institutions should become multidisciplinary. That is all. That is it. Final. अब संस्कृत यूनिवर्सिटी, संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत पाठशाला मल्टी डिसिप्लिनरी होना ही चाहिए। अगर आपको एग्जिस्टेंस चाहिए तो मल्टी डिसिप्लिनरी होना, चॉइस कुछ नहीं है इसमें। रोते मत बैठिए। संस्कृत के लोग, अरे शास्त्र का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, रोइए मत, क्योंकि होने वाला तो है ही। कम से कम हमारे अनुकूल रूप में इस एतस्य परिवर्तनं किं कर्तुं शक्यते तत् चिन्तयतु। एनईपी इम्प्लिमेंटेशन भविष्यत्येव, तत् निश्चितमस्ति। जानन्तु एतत्। बहुभाषी पुनः संस्कृत प्राध्यापकाः वदन्ति हम ऑलरेडी मल्टी डिसिप्लिनरी है, यहाँ व्याकरण पढ़ाते हैं, वेदांत पढ़ाते हैं, न्याय पढ़ाते हैं, भिन्न भिन्न डिसिप्लिन है, सो ऑलरेडी मल्टी डिसिप्लिनरी। वो उसका अर्थ वो नहीं है मल्टी डिसिप्लिनरी। आप एनईपी 2020 पढ़िए, तब मल्टी डिसिप्लिनरी का अर्थ क्या है आपको समझ में आएगा। मैं अभी यहाँ रेडीमेड आपको नहीं बताता हूं, क्योंकि आप पढ़े नहीं है, आप पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा मल्टी डिसिप्लिनरी यानी क्या। तो संस्कृत स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स थिंक ऑफ योर फ्यूचर एंड फ्यूचर ऑफ बोथ संस्कृत एंड भारत। मैं इसलिए कहा शुरू में, देखिए प्राध्यापकों का, हम सबका जॉब सिक्योर्ड है, लेकिन छात्रों के बारे में सोचिए। छात्रों का भविष्य क्या है? जिस गति से आने वाले दिनों में केवल अगर भाषा केवल जानते हैं, शास्त्र केवल जानते हैं, आधुनिक विद्याएं नहीं जानते हैं, तो उस संस्कृत छात्र का भविष्य नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। मैं उसके बारे में थोड़ा आगे आता हूं। देखिए, संस्कृत शिक्षा के संदर्भ में 3 प्रश्न हम सब करना चाहिए। वाई संस्कृत एजुकेशन, हाउ एंड व्हाट। इसका अर्थ हमें ठीक समझना चाहिए। वाई यानी हम संस्कृति, भारत, ज्ञान परंपरा, देश, शास्त्र परंपरा, वो नहीं है। वो हमारे दृष्टि में वो है जो हमारे मन में वो है। शास्त्र रक्षा होना चाहिए, लेकिन आप आपके छात्र के बारे में सोचिए। वो जो शास्त्री कक्षा में, मध्यमा कक्षा में, संस्कृत कक्षा में प्रवेश करता है, वो क्यों प्रवेश करता है? शास्त्र रक्षा करने के लिए नहीं, वो अपनी रोजगार के लिए, जीवन के लिए, तदर्थम रोजगार निमित्तम, जीवन निमित्तम सह प्रवेशम करोति। श्रीमान अमित खरे महोदय केंद्र
केन्द्रसर्वकारस्य शिक्षा मन्त्रालये पूर्वं हायर् एजुकेशन् सेक्रेटरी आसीत्, इदानीं PMO मध्ये एड्वैसर् रूपेण कार्यं करोति। एतादृशमहाजनः अस्माकं सप्रम् आगतवान् इति बहु सन्तोषः, स्वागतम्। तो छात्र, संस्कृत छात्र क्यों शास्त्री कक्षा में प्रवेश लेता है? उनको अपनी रोजगार, इसलिए अगर ये वही शास्त्री कोर्स, वही आचार्य कोर्स, वही वेदांता कोर्स, वही व्याकरण कोर्स, ये तय करते समय केवलम शास्त्र रक्षा को ध्यान में रख के मत सोचना। NEP 2020 में एम्प्लॉयमेंट के बारे में जितना कहा है, एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में भी कहा है। छात्रों के एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ना चाहिए। अगर हमारे छात्र एम्प्लॉयबल, संस्कृत के छात्र 3 विषय छोड़ के, ज्योतिष्य, कर्मकांड और स्कूल शिक्षक, ये 3 रोजगार क्षेत्र छोड़ के अन्य क्षेत्र में एम्प्लॉयबल हो, यह हमें सोचना चाहिए। संस्कृत के साथ साथ और क्या क्या, तो यह भी एक विषय है। फिर कैसे पढ़ाना, हाउ टू टीच, देन आल्सो व्हाट टू टीच। 3 एस्पेक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल व्हाट टू टीच, मैं उसके बारे में आगे नेक्स्ट आता हूं। देखिए, 3 periods of Sanskrit education: pre-British, British and post-British. Many people, you may not be aware, you see, ब्रिटिश आंग्ल शिक्षा व्यवस्था आने तक भारत में संस्कृत माध्यम से पढ़ाते थे, नंबर 1। नंबर 2, प्रोफेसर धर्मपाल जी के एजुकेशन इन 18th सेंचुरी पुस्तक देखिए। 1,82,000 गांवों में विद्यालय थे। हर एक विद्यालय में 5वीं तक संस्कृत माध्यम से काव्य, व्याकरण, न्याय और गणित, ये 4 सब्जेक्ट पढ़ाते थे। हमारे पूर्वजों ने ज्ञान क्षेत्र में उत्तुंग शिखर कैसे पहुंचे? व्याकरण, न्याय और गणित, ये 3 विषय पढ़ाते थे। आजकल AI टेक्नोलॉजी में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, नॉलेज इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर क्षेत्र में यही 3 सब्जेक्ट है: सिंटैक्स, ग्रामर, लॉजिक एंड मैथमेटिक्स। यही 3 है आज भी। द लेटेस्ट मॉडर्न कॉन्टेम्पररी टेक्नोलॉजी में, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी में ये 3 विषय थे। ये 3 विषय है। प्री ब्रिटिश पीरियड में 18th सेंचुरी तक इन तीनों विषयों को पढ़ाते थे। 5-6 साल की शिक्षा होती थी और संस्कृत माध्यम से होता था, अन्य भाषा माध्यम से, अनुवाद माध्यम से नहीं था। लेकिन इसके साथ साथ 5-6 साल की शिक्षा के बाद वो कौशल शिक्षा होता था। कौशल शिक्षा, कौशल आज की परिभाषा में मैं कौशल बता रहा हूं, तब कौशल शिक्षा ये नाम नहीं था। 6वीं तक सामान्य शिक्षा, उसके बाद हर एक छात्र कुछ अपने अपने कुल परंपरा के अनुसार उस प्रोफेशन का स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ता था। कोई वेद विद्या के लिए जाता था, कोई शास्त्र विद्या के लिए जाता था, कोई ये शिल्प विद्या के लिए जाता था, कोई आगम शास्त्र पढ़ता था, कोई गणित पढ़ता था, ऐसे अलग अलग। इसलिए प्राचीन भारत में विद्या का 2 विभाग किए: सत विद्या, असत विद्या। सत विद्या यानी अध्यात्म विद्या, असत विद्या यानी ये सारे जीवनोपयोगी विषय असत विद्या है। परा विद्या, अपरा विद्या। परा विद्या अध्यात्म विद्या, अपरा विद्या यानी
जीवन उपयोगी राष्ट्रोपयोगी विषय अर्थ प्रबंध लेखापन जितने भी ये शिल्प भरतनाट्य नाट्य कला ये सब विद्याएं तो कलाएं तो ये सब 5-6 साल के बेसिक शिक्षा के बाद अपनी कुल परंपरा के अनुसार वो छात्र अपना अपना रोजगार विद्या प्रोफेशनल शिक्षा प्राप्त करते थे। ये प्री ब्रिटिश पीरियड में। ब्रिटिश काल में आप जानते हैं पूरे देश में संस्कृत विद्यालय बंद किए गए। ऑल 1,82,000 पाठशालास were closed. Then 1876 में कलकत्ता संस्कृत कॉलेज शुरू हुआ, बनारस संस्कृत कॉलेज शुरू हुआ। कुछ हिंदुओं को उनका समाधान करने के लिए ब्रिटिश ने संस्कृत कॉलेजेस ये प्रारंभ किया। लेकिन उस तब से ब्रिटिश जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम के साथ जो संस्कृत एजुकेशन पाठशालाएं शुरू किए गए, उसका उद्देश्य केवल हिंदू समाज की धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए केवल था। कर्मकांडी या ज्योतिष्य या शिक्षक एक भाषा के नाते केवल ये 150 साल अंग्रेजों के काल में केवल ये 3 विद्या केवल इनको सिखाया गया और संस्कृत लोगों को आप केवल यही करिए, बाकी कोई इसमें ये नहीं था। स्वातंत्र्य आने के बाद भी अभी तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उस कारण से ही अभी तक संस्कृत की ये ह्रास हुआ, क्योंकि दैनंदिन जीवन के राष्ट्र जीवन के साथ या दैनंदिन जीवन के साथ उद्योग के साथ कोई संबंध नहीं रहा। हमारी शिक्षा का एक सिंपल लॉजिक आप देखिए मार्केट में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कैसे होता है। मुझे यहां मार्केट में इकोनॉमिस्ट बीए पढ़े हुए हैं, बीए पढ़े हुए, बीएससी पढ़े हुए ऐसे लोग मिलते हैं, इसलिए मैं बीएससी जो पढ़े हैं इनके लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं करता हूं। लेकिन मार्केट में जो डिमांड है उसके अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण करना, पाठ्यक्रम के अनुसार एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन नहीं होता। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आवश्यकता क्या है, इंडस्ट्री की आवश्यकता क्या है, कॉमर्स की आवश्यकता क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता क्या है, जुडिशियरी की आवश्यकता क्या है। ये ऐसे जीवन के राष्ट्र जीवन के अलग अलग क्षेत्रों के आवश्यकता के अनुसार विश्वविद्यालयों में नए नए पाठ्यक्रमों का निर्माण होता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में हर 5 साल में पाठ्यक्रम परिवर्तन होता है। एमर्जिंग टेक्नोलॉजी को शिक्षा में, इंजीनियरिंग शिक्षा में लाते हैं। संस्कृत शिक्षण में अभी तक कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। मैं 40 साल पहले जब संस्कृत प्रचार काम शुरू किया था तब लगभग 600 कोर्सेस संस्कृत छोड़ के बाकी दुनिया में, भारत में लगभग 600 कोर्सेस थे। आज 6000 कोर्सेस हैं, लेकिन संस्कृत में केवल शास्त्रीय आचार्य 2 ही बचे हैं। तब भी 2 ही था, अभी भी 2 ही था। हम ज्यादा किए ही नहीं समाज की आवश्यकता के अनुसार। इसलिए हम सबको इसके बारे में सोचना चाहिए। इसी कारण से ही एनईपी में बहुत से बातें कहे गए हैं और एनईपी में इस प्रकार के बहुत से अपॉर्चुनिटीज है हमारे लिए, नया नया ये कोर्स बनाने के लिए। देखिए एक ही बात हम वदामी, एकम उदाहरण वदामी। किसी, आप जानते हैं, किसी को यूरोप से ये जूते
सेल्स प्रोडक्शन जूते कंपनी वाले किसी रिप्रेजेंटेटिव को अफ्रीका भेजा, वहां जाके वो देखा कोई जूता नहीं पहनता है, इसलिए यहाँ जूते का बिजनेस नहीं होगा, मुझे वापस आने के लिए अनुमति दीजिए। वो अनुमति दिया गया, वो वापस आ गया। बाद में और एक को बेचते हैं, वो जाके देखा यहाँ कोई जूता नहीं पहनता है, वो टेलीग्राम बेचता है, यहाँ कोई जूता नहीं पहनता, बहुत बड़ा मार्केट हमें मिलेगा, आप प्रोडक्शन डबल करिए। ये सोचने की रीति है, प्रोडक्शन बढ़ाइए, बहुत मार्केट। संस्कृत के लिए भी ऐसा बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इंडियन नॉलेज सिस्टम के कारण और भारतीय भाषाओं के कारण, और कई कारण है जो नवश एक भारत श्रेष्ठ भारत निर्माण आगे आने वाले दिनों में अगले 20 साल में होगा। वो नव भारत निर्माण किस आधार पे होगा? भारतीय तत्वों के आधार पर नव भारत निर्माण होगा। नई व्यवस्थाएं खड़े होंगे, आर्थिक व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, उद्योग व्यवस्था, सभी जो नई व्यवस्थाएं खड़े होंगे, वो नई व्यवस्थाएं भारतीय तत्वों के आधार पर होगा। वो भारतीय तत्व कहाँ है? वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में, संस्कृत वाङ्मय में है। वो खोज के देश को देने का दायित्व किनका है? हमारे संस्कृत लोगों का है। कितना बड़ा मार्केट है, आप सोचिए। देश चाहता है नया भारत निर्माण करने का, संस्कृत लोग हम अभी अपना दायित्व समझ के ये इसके बारे में सोचना चाहिए। पोस्ट ब्रिटिश पीरियड में, यानी मैं पोस्ट ब्रिटिश बताया, इंडिपेंडेंट भारत नहीं बताया। पोस्ट ब्रिटिश पीरियड में भी संस्कृत क्षेत्र में वही चल रहा है। अभी भी हम केवल कर्मकांडियों वो चाहिए, वो नहीं चाहिए मैं नहीं बता रहा हूं। ज्योतिष्य चाहिए, शास्त्र विद्वान चाहिए, शिक्षक चाहिए, कर्मकांडी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अन्य विषयों को भी हम क्यों नहीं? जैसे अभी ये जो NEP 2020 के अनुसार देखिए, शास्त्री कक्षा है, मध्यमा 2 साल, शास्त्री 3 साल, 5 साल की शिक्षा में संस्कृत 50% पढ़ाइए, शास्त्र 50%, संस्कृत शास्त्र वगैरह 50% मॉडर्न सब्जेक्ट पढ़ाइए, कंप्यूटर साइंस पढ़ाइए, इकोनॉमिक्स पढ़ाइए, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाइए, कई साइकोलॉजी पढ़ाइए। इधर योग शास्त्र, ट्रेडिशनल इसमें योग शास्त्र, मॉडर्न में साइकोलॉजी, ऐसे रिलेटेड। एंशियंट इसमें तर्कशास्त्र, मॉडर्न इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ऐसे इसमें व्याकरण, यहाँ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या AI टेक्नोलॉजी। इस प्रकार दोनों को अगर मिला के हम पढ़ाएंगे, शास्त्री कक्षा के बाद वो चाहिए तो फिर शास्त्र में रिसर्च करे, या शास्त्र में PG कोर्स करे, या आधुनिक विषय में करना चाहता है वो भी करे। शास्त्री तक पढ़ के वो अगर LLB पढ़ेगा तो लॉयर बनेगा, तो जुडिशियरी में हमारा भारतीय चिंतन ला सकता है। अगर आर्थिक क्षेत्र में जाएगा, आर्थिक क्षेत्र में भारतीय संस्कृत चिंतन ला सकता है। इस प्रकार देखिए, हमें थोड़ा रिजिड चिंतन नहीं करना, थोड़ा विशाल चिंतन करना, और एक निर्णायक समय है अभी। हम पहले से जैसे सोचते आए हैं। एक उदाहरण बताता हूं। एक पात्र है, मेटल पॉट, उसमें पानी है, उसमें एक फ्रॉग, मंडूका अस्ति। पानी अगर एकदम टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर एकदम ज्यादा होता है तो फ्रॉग
तुरंत बाहर कूद लेता है, लेकिन टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ता है, उसको समझ में नहीं आता, वो वहां ही मर जाता है। हमारा संस्कृत क्षेत्र का अभी ये दूसरे प्रकार का हो रहा है, जो ह्रास हो रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है, आने वाले दिनों में सब ये हो जाएगा। इसलिए थोड़ा अलग प्रकार से हमें सोचना है। तो नाउ लेट अस थिंक ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वर्तमान के बारे में जो सोचिए, भारतीय भाषा, भारतीय ज्ञान परंपरा एंड भारतीय नवाचार, इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड इंडियन इनोवेशंस। थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग करिए, इनोवेशन होना है, भारतीय नवाचार, भारतीय इनोवेशन होना है। तो भारतीय, देखिए इनोवेशन के लिए साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट या नए इनोवेशन करते हैं ना, कोई भी, वो कुछ कॉन्सेप्ट लेके उस कॉन्सेप्ट को डेवलप करके फिर पोस्टुलेट करके करके एक नया इनोवेशन करते हैं। तो योग गुरु डॉक्टर नागेंद्र, वो बॉस्टन में एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त साइंटिस्ट के घर गए थे। तो वो पुस्तक पढ़ रहे थे, दश उपनिषद। तो पूछा नागेंद्र जी क्यों ये पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा वेस्टर्न इसमें टेक्स्ट में अभी आई एम नॉट गेटिंग न्यू लाइट, नया प्रकाश के लिए भारतीय ग्रंथों को मैं पढ़ रहा हूं। तो भारतीय ज्ञान परंपरा से भारतीय नवाचार होगा, और वो भारतीय ज्ञान परंपरा भारतीय भाषा में है। रोड मैप, सजेस्टेड रोड मैप यानी यही है। मेरा निवेदन है आप सबसे, आधा संस्कृतम, अर्थम आधुनिक विषयः, रोजगार विषयः, अर्थम शास्त्र विषयः, परंतु शास्त्र विषयं सम्यक् पाठयतु, तदा शास्त्रमपि भवति, आधुनिक विषयः अपि भवति। तो एवं प्रकारेण अस्माभिः नूतन पाठ्यक्रमः निर्मातव्यः। संस्कृत विद्यालयाः भवतु। नेक्स्ट स्लाइड। तो अस्माकं चिन्तनतः टीच संस्कृत एज ए लिविंग लैंग्वेज, नॉट एज ए डेड लैंग्वेज। अभी कैसे पढ़ा रहे हैं आप जानते हैं, मैं इसलिए आप प्राध्यापकों को अभी बता रहा हूं। Don't teach it as a dead language. Teach it as a living language. Teach it as a modern language, not as a classical language. Teach it to use it, not only to understand it. Teach its contemporary use, not its ancient glory only. Teach its application, not its theories only. संस्कृत का कहां कहां एप्लीकेशन हो सकता है? उदाहरण के लिए न्याय शास्त्र का है। न्याय शास्त्र को उसमें प्रमाण शास्त्र है, पदार्थ शास्त्र है, प्रमाण विचार, पदार्थ विचार और आत्म विचार। पहले वैशेषिक दर्शन से पदार्थ शास्त्र मेटीरियल साइंस लेके वहां न्याय भाषा का एप्लीकेशन किया। आज उसी न्याय भाषा में आज के केमिस्ट्री, फिजिक्स आदि मॉडर्न सब्जेक्ट्स का रीडिफाइन, रीएनालिसिस कर सकते हैं। ऐसे इस प्रकार के वो एप्लीकेशन सोचना चाहिए। लर्न संस्कृत, एनरिच, एनलाइटन, एम्पावर एंड एलिवेट योरसेल्फ थ्रू संस्कृत। लर्न संस्कृत एंड द थ्रिल ऑफ न्यू क्रिएशन, नवसर्जन का एक क्रिएशन होगा। नेक्स्ट लास्ट, आगे क्या करना? ट्रेन टीचर्स, चेंज द टीचिंग मेथड, create new courses, use technology, work with the scholars of other disciples. संस्कृत, हर एक संस्कृत अध्यापक एक मॉडर्न सब्जेक्ट के स्कॉलर के साथ बैठ के रिलेटेड एंशिएंट टेक्स्ट को दोनों मिलके अध्ययन करना चाहिए। वेद को अगर एक संस्कृत पंडित, एक इकोनॉमिस्ट, एक संस्कृत पंडित, एक फिजिसिस्ट, ऐसे दोनों मिलके अगर सभी शास्त्र ग्रंथों को, वेदों का अध्ययन करेंगे, बहुत कुछ नया उससे आ सकता है। तो वर्क विद स्कॉलर्स ऑफ अदर डिसाइपल्स, हैव कोलैबोरेशंस
अभी कोलैबोरेशन करने का संस्कृत विद्यालयों का कोई अभ्यास नहीं है, लेकिन अभी कोलैबोरेशन का युग है। देखिए, अन्य क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में 4 लोग मिलके रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं, एक भारत से, एक जापान से, एक जर्मनी से, एक अमेरिका से। 4 लोग 6 महीना 1 साल रिसर्च करके प्रेस्टीजियस मैगजीन में रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करते हैं। हम संस्कृत के लोग क्यों इस प्रकार कोलैबोरेटिव एफर्ट नहीं करें? करना चाहिए। हैव कोलैबोरेशन, आशर इन ए न्यू वर्क कल्चर। संस्कृत विद्यालयों में, संस्कृत विश्वविद्यालय में नई कार्य संस्कृति हमें लाना चाहिए। फ्यूचर लाइस इन संस्कृतम, परिवर्तनम अवश्यम भवति। वयम इच्छामः अथवा न इच्छामः, भगवान इच्छति, नरेंद्र मोदी महोदय इच्छति। मम गुजरात प्राध्यापकानां भवतां समीपे विशेष निवेदनम्। मान्य नरेंद्र मोदी महोदयः, भवन्तः जानन्ति, देशे प्रथम प्रधानमंत्री यः प्रत्येकं भाषणे संस्कृत श्लोकस्य, वेदस्य उल्लेखं करोति। अद्य पर्यन्तं कोऽपि मंत्री, प्रधानमंत्री एतावत् न कृतवान्। केवलम् एतावत् न, वो सुभाषित या वेद मंत्र बोलने से पहले एक वाक्य बोलते हैं, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है, ऐसा बोल के फिर वो क्यों? शास्त्रों के प्रति पूरे देश की श्रद्धा बढ़े, इसलिए वो बोलते हैं। हमारा काम वो कर रहे हैं, तो हमारा भी कितना बड़ा दायित्व है। पूरे गुजरात में जितने भी संस्कृत विद्यालय हैं, संस्कृत पाठशालाएं हैं, इसमें एक बहुत बड़ा नया परिवर्तन आना चाहिए। भारत की शिक्षा इतिहास में गुजरात के संस्कृत विद्यालयों के नवोत्थान का नई शुरुआत अगर होगी तो सार्थकता होगी। इस निवेदन के साथ मैं थोड़ा ज्यादा इदानीं वक्तुं शब्दाः न सन्ति, अनिर्वचनीयम् इदं व्याख्यानम्। ऐसा लगता है कि अब कुछ सुने ही नहीं, चिंतन ही करते रहे इसके ऊपर। ऐसे बिंदुओं को आपने स्पष्ट किया है। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए, राष्ट्र के लिए, व्यक्ति निर्माण के लिए इसकी स्थापना की है। और हम सब यहाँ दूर दूर से हमारे विद्यालय के जो कॉलेजेस, पाठशालाएं हैं, उसके स्टूडेंट भी सुन रहे हैं। मेरे यहाँ यूनिवर्सिटी परिसर में भी जो स्टूडेंट्स हैं वो सुन रहे हैं। इनको आज एक नई दिशा, नया हमें बिल्डिंग कैसे खड़ा करना है उसका पूरा जैसे कि चार्ट हमें दिखाया गया है नवाचार के बारे में। मैं कुछ ये बताना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय जो अभी है वो दोनों पराविद्या और अपराविद्या दोनों पर कार्य करने के लिए सज्ज हैं। पराविद्या तो वहाँ चल ही रही है, शास्त्रों के अध्ययन सरल मानक संस्कृत से किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन शॉर्ट टर्म कोर्सेज और इसके अतिरिक्त आधुनिक विषयों के साथ जोड़कर कुछ कोर्सेज बनाए हैं। मैं 1 मिनट में वो भी दिखाना चाहता हूँ कि अभी हमने जो लो यूनिवर्सिटी है, गुजरात लो यूनिवर्सिटी के साथ MOU के तहत भारतीय स्मृति शास्त्र में जो विधि है और जो आधुनिक विधि है, दोनों को मिलकर एक कोर्स तैयार हुआ है। जनवरी में वो लॉन्च होगा। पूरे कानून के स्टूडेंट और संस्कृत के स्टूडेंट और इसके अतिरिक्त भी इस कोर्स में डिप्लोमा एक 1 ईयर का कोर्स किया है उसमें जुड़ेंगे। उस तरह अनेक हमने जो पाठ्यक्रम इस दिशा में MA इन हिंदू स्टडीज को हम अभी कर रहे हैं। फिर बहुत विदेश के स्टूडेंट जो अभी सालंगपुर में हमने एक कोर्स चलाया भगवत गीता और इट्स कमेंट्रीज, उसमें 16 देशों के स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े, 1 ईयर उसका डिप्लोमा कोर्स चलाया। तो आपका मार्गदर्शन बहुत उपयोगी होगा और जो आधुनिक विषय हैं वो आधा करके हम कैसे आगे बढ़े उसके बारे में हम आपकी सलाह और विद्वानों की सलाह लेके ऐसे पाठ्यक्रमों का निर्माण करने के लिए कटिबद्ध हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मार्गदर्शन करने के लिए मल्हार कुलकर्णी महोदयाः अत्र उपस्थिताः सन्ति। ते दूरस्थरीत्या सम्बोधनं करिष्यन्ति। सादरं सगौरवम् अहं निवेदयामि मान्याः भवन्तः इदानीं स्वकीयं मार्गदर्शनम् अत्र कुर्वन्तु इति उपदिशन्तु अस्मान्। मल्हार कुलकर्णी प्रोफेसर IIT बॉम्बे मध्ये प्रोफेसर सन्ति। इदानीं समक्षम् आगताः मान्याः, स्वागतम् अस्ति जी।
प्रणमामि। सर्वेषु विद्वत्तल्लजेषु मम प्रणमाः समर्प्यन्ते। Am I audible? Yes, yes. I want to share my screen, my presentation. Let me do that and then I will start speaking. Is the screen visible to all of you? Yes, yes. Okay. So I also request the chair to let me know how much time do I have at my disposal, because it is already 12:40. So if our session is going to conclude at 12:45, I have 5 minutes. I can speak in 5 minutes, but please let me know how much time do I have. Yes, try. आप try कीजिए कि हेलो Huh? आप ट्राई Sorry? कीजिए कि 5 से ज्यादा हो गए तो कोई चिंता नहीं, 10 मिनट या ऐसे, लेकिन आपका ही है, फिर बाद में हम इसे समाप्त करेंगे सेशन को। ठीक है, ठीक go है। ahead. तो let me begin. विश्वेशं सच्चिदानंदं वंदेहं योखिलं जगत् चरीकर्ति बरीभर्ति संजरीहर्ति लीलया। विश्वेशं सच्चिदानंदं वंदेहं योखिलं जगत् चरीकर्ति बरीभर्ति संजरीहर्ति लीलया। I thank all the dignitaries on the dais, respected Chamu Krishna Shastri ji, respected Professor Patel ji, and everybody else. I thank the authorities of the Somnath Sanskrit University and this particular summit for including me to present my thoughts on this topic. Some remarks on Sanskrit and interdisciplinary studies in this digital age. Chamu Krishna Shastri ji has already explained several things, and they are self-explanatory, self-illuminated. I will take one point from his illuminating speech and would like to develop that during the course of this talk. If you have any questions, if you have any doubts, you can stop me and ask me, or you can also ask it later on. So first of all, in this digital age, what we experience is the following. Is my slide change visible to all of you? Yes. Yes. So, digital tools in education system has brought in a lot of change. In fact, a new terminology. In fact, a new ecosystem. For past almost more than 2 years, we are experiencing this effect of the inclusion of the digital tools in education. There are some benefits and there are some problems. The benefits are the global outreach of classrooms. For example, a lecture of mine can be attended by students in India, anywhere in India, and also, for example, from Brazil and Germany as well. This would never happen in case of my physical lecture. There are tools which are available, tools which help us get the data, tools which help us analyze the data, and tools which help us present the data that we have created. So now we have notions like virtual classroom.
we have meeting rooms in which a particular person can be admitted virtually. Then there is also system of raising one's hand in order to make one point or ask a question. There were similar notions available in the physical education, but these notions are becoming very much important as far as the digital education is concerned, and the digital tools are taking care of all these notions. However, there are some problems as well. There are issues. For example, the presence of students. This is becoming day to day increasingly problematic. Whether the students are interested or not, there are no means to ascertain this, as some students can join and then switch off their video and can do something else. These are some problems of the digital tools in education. Delivery of content by teacher can be done using various means like boards and so on. The tone that the teacher used to do in the physical classroom can, however, be changed. Right now, because of the digital medium, the teacher does not need to shout, does not need to raise his voice. The problem is, can the teacher readily say whether his effort has achieved its goal in imparting the knowledge that he aims to do? The other important issues that we have seen is the evaluation metrics. How does evaluation take place? Should we go for the MCQs or the MSQs, or should we still continue with the essay type questions? There has been proctoring issues. Then there has been personal attention to improve the competence of the students. The personal attention that can be provided using digital tools to improve a student is a plus point. But proctoring and other issues, they pose real problems. If this is the current situation, what is it that the policymakers have designed for us in order to cope up with this and other overall situations? These digital tools that have added new dimension to the education overall must be considered when we make policies. Now, if we look at the goal of education, in a nutshell, these can be pointed out as the goals. Vinaya, as is stated in the Arthashastra, Dhyakya, as is stated in the Sutra, and Viveka, as is stated in Vakyapadiya. And I would like to quote Vakyapadiya over here, which says, Prajna Vivekam Labhate, Vinnai Ragama Darshanaihi, Yadva Shakya Munnetum, Swatarkam Anudhavata. If these aims of education are to be met with or achieved, then obviously we need to relook at the legacy system of education that we have been following. What is that system that we have been following? So in the legacy studies, legacy system, the focus is on the following: on recall and also precision. Nowadays we see that there has been addition as far as comprehension is concerned. More focus needs to be also given on decision making and also creativity. Language studies are primarily focused on recall in primary and secondary education. Now we can see that with the efforts of Chamu Krishna Shastri ji, especially the Sanskrit education, we also see comprehension coming in and making an important impact. Also creativity and also decision making. Higher education should aim at precision as well as other aspects. Research in the field in Sanskrit should also address decision making as well as creativity. The digital tools can obviously help us in this particular regard. Imparting knowledge
of how to use such digital tools, therefore, becomes a challenge, becomes very important as far as the modern education system is concerned, and policymakers should pay enough attention to these aspects. And some of these aspects, or more or less these aspects, are paid due attention in the NEP. What about the interdisciplinary studies? When interdisciplinary studies related to languages are spoken, are talked about, are discussed, and more specifically with reference to Sanskrit, we should focus on the following points. For example, the important part as far as the language studies are concerned is data collection. As far as the Sanskrit education is concerned, which is completely text teaching oriented, we need to introduce these aspects: data collection, data in the form of corpus of texts, corpus of speech, corpus of pictures, corpus of eye movement. And this is very important, this is newly added, eye movement. Using the data of eye movement, the new form of corpus of texts, corpus of speech, corpus of pictures, corpus of eye movement. And this is very important, this is newly added, eye movement. Using the data of eye movement, the new field called cognitive natural language processing has emerged and is doing wonders. Then we need to analyze these data by doing the segmentation of the data, then annotation of the data, assembling of the data, and also using all these segmentations, the generation of these data. The interdisciplinary studies related to Sanskrit can definitely take care of these aspects and make them part of the Sanskrit education. Also data storage in the form of lexicon and also the codes to read the lexicon. Earlier, the chairman was referring to, and also the people from Somnath Sanskrit University, the respected professors, they were also mentioning about multiple meanings a word has. IIT Bombay has in fact created a lexicon called Sanskrit WordNet, which aims to dedicate itself to solve the problem of word sense disambiguation, which is an important problem that is related to the polysemous words or homonymous words like Hari, which have multiple meanings. And then this data gets presented in various forms, like visual as well as audio forms. This needs to be deeply studied by Sanskrit students and Sanskrit language curriculum makers and also the policy makers. Development of tools for general use, for example, for machine translation or information retrieval in multimodal domain, that needs to be taken at heart, taken into serious consideration. Then there is an evaluation matrix that is also a part of the interdisciplinary study related to languages, and it should become part of the curriculum of Sanskrit, where there is self-evaluation and also there is inter-annotator agreement, there is evaluation by others or experts. Thus, we can aim for the improvement for the sake of self-improvement and for nothing else. And of course, this will bring about several such aims also mentioned by Champu Krishna Shastri ji. Now, here onwards, I would like to present to you one case of a tool developed by IIT Bombay in order to enhance the use of digital tools in language education. We are currently focusing on the primary education, but also the high school education and also other types of education is part of this particular tool. And the name of that tool is Shabda Mitra. This is called Shabda Mitra. This is the picture of Shabda Mitra, which needs to be developed for all Indian languages.
The Shabdamitra is a multilingual integrated digital aid for Indian language teaching, learning. It focuses right now on vocabulary and grammar learning through images and audios. Simplified explanation of concepts with examples, synonyms and grammatical features, etc. is also a part of it. It is suitable for both formal as well as informal teaching environments. And we have also created a web interface as well as a mobile interface of this particular tool. The name Shabdamitra has two meanings and प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं कि कंक्लूड करें कृपया इसे संक्षिप्त में. yes, sir. I have only 2 slides and then there is conclusion. I will just move over these slides fast. So there is this Shabdamitra, which means a friend which helps and also an illuminator. And this is an example. I will skip this and I will conclude. So policymakers should pay attention to these aspects. If they have paid, then they should be thanked and design the policy for language education at all levels so that optimal use of the resources is guaranteed. Also, creativity gets expressed and improvement is achieved in expression, together with the decision-making ability being developed and the goal of education be achieved. With these words, I thank all of you for patient hearing. I also thank the authorities for giving me this wonderful opportunity and Chamu Krishna Shastri ji for a wonderful speech. Thank you all. Thank you. अनुगृहीताः स्मः भवतां वचनैः. इदानीम् अत्र अस्माकं मध्ये उपस्थिताः सन्ति मान्यः श्रीमन्तः अमित खरेजी महोदयः. कृपया निवेदनमस्ति भवन्तः अपि किञ्चित् अस्मिन् विषये अस्मान् उद्बोधयन्तु. Sir, 1 second. I will stop sharing now. Yeah. Thank you. Yes, yes. Thank you. Thank you. Thank you very much. पद्मश्री चामू कृष्ण शास्त्री जी, सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, संस्कृत भारती एवं अन्य संस्थानों से जुड़े हुए सभी महानुभाव, प्रोफेसर कुलकर्णी, प्रोफेसर चामू कृष्ण शास्त्री जी ने बड़े विस्तार से बताया. पुराने इस विषय पर कार्यकर्ता भी हैं और नेतृत्वकर्ता भी हैं, दोनों ही हैं. इन्होंने जमीनी स्तर पे भी काम किया है और अभी जो केंद्र सरकार में ये शिक्षा मंत्रालय में भारतीय ज्ञान परंपरा के संबंध में जो समिति बनी है उसकी अध्यक्षता भी कर रहे हैं. भारतीय भाषा और ज्ञान परंपरा की भी आप अध्यक्षता कर रहे हैं. मैं कुछ इन्होंने जो भी अभी जानकारी दी उसके लिए साधुवाद देते हुए कुछ जैसा इन्होंने कहा कि शिक्षा और उसको एम्प्लॉयबिलिटी से जोड़ना. कुछ साल पहले मैं सूचना प्रसारण मंत्रालय, जिसमें दूरदर्शन रेडियो ये आते हैं, उसमें सचिव था और एक दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वार्तावली मैंने देखी. आप में से कुछ लोग अवगत होंगे, देश में एकमात्र कार्यक्रम जो संस्कृत में आता है वो वार्तावली है. तो वहाँ तक तो खुशी की बात है, लेकिन उसके आगे उन्होंने कहा कि ये वार्तावली में सारे लोग धोती और कुर्ते में ही क्यों आपके रहते हैं, क्या ये केवल एक वर्ग विशेष की भाषा है. और उस समय एक चिंतन प्रारंभ हुआ. उन्होंने कहा कि ये सोचिए कि जर्मनी में भी तो लोग संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं. आखिर ये विश्व की भाषा है, विश्व की प्राचीनतम भाषा है. तो ऐसी परिस्थिति में इसको केवल कर्म कांड से या एक वर्ग विशेष से नहीं जोड़ा जाना चाहिए. दूसरा एक उदाहरण देता हूँ संक्षेप में, चूंकि सत्र समाप्ति की ओर है. अभी हम लोग चामू कृष्ण शास्त्री जी को और प्रोफेसर कुलकर्णी को सुन रहे थे. उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण देखिए कि तिरुपति में IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन है और वहीं संस्कृत विश्वविद्यालय भी है. लेकिन ये सब अलग अलग क्यों चलते हैं? क्या ये संभव नहीं है कि एक तिरुपति में ही स्थापित 3 विश्वविद्यालय
एक दूसरे के साथ मिल करके, और ये भावना हमको हर स्तर पे लानी होगी, क्योंकि कई बार जो संस्थान, विशेष रूप से जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन जिसको हम कहते हैं, उनमें ये भावना रहती है कि हम अलग हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ज्ञान एक है। ज्ञान में ये साइलोज अलग अलग नहीं हो सकते हैं कि ये संस्कृत का ज्ञान अलग है, हिंदी का ज्ञान अलग है, और अंग्रेजी भाषा में जो भी पढ़ाया जा रहा है वो उससे कुछ ऊपर है। इसलिए तीसरा एक बिंदु, और उसके लिए मैं कुलकर्णी जी को साधुवाद दूंगा, वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के उपयोग प्रयास कर सकते हैं कि संस्कृत को आम विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए अगर हम टेक्नोलॉजी का सहारा लें। आखिर क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग के जो कोर्स रहते हैं वो सरकारी से लेके निजी जो संस्थाएं हैं, अंग्रेजी शिक्षा के कोर्स जमीनी स्तर तक पहुंचा रही हैं। क्या ये काम हम संस्कृत के लिए नहीं कर सकते हैं, जब भारत सरकार के, राज्य सरकारों के मिशन है टेक्नोलॉजी मिशन, और टेक्नोलॉजी से ये बहुत आसान है कि न केवल पढ़ना अपितु सीखना भी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी बात चामुंडा शास्त्री जी ने की, उसके माध्यम से अनुवाद साथ साथ होते रहता है। ये भी संभव है कि चामुंडा शास्त्री जी संस्कृत में बोलें, मैं हिंदी में बोलूं, और तीसरा व्यक्ति को जो आंध्र प्रदेश में है उन दोनों का अनुवाद तेलुगु में कर ले, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके संस्कृत को एक भाषा नहीं बल्कि एक मूल भाव के साथ चलना होगा, भाषा से ऊपर भाव। और एक अंत में मैं कहना चाहूँगा कि जिन्होंने, आप सभी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना समय दिया, उनकी प्रेरणा से ये 2020 में आई, उसका भाव यही है कि हम वैश्विक नागरिक जरूर बने, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी धरती से जुड़े रहें। We should have a global outlook, but our feet should be on the ground. हवा में उड़ने से काम नहीं चलेगा, जमीन पे पाँव होने चाहिए, और वो जमीन हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, और संस्कृत तो भाषाओं की जननी है, लेकिन अलग अलग राज्यों की जो ट्राइबल क्षेत्र हैं उनमें और भी अलग भाषाएं हैं, जो 8वीं अनुसूची से अलग। लेकिन जब तक अपनी संस्कृति, अपनी भाषा से जुड़ेंगे, और उस भाषा से जुड़कर जो हम ज्ञान बढ़ाएंगे वो एक नया ज्ञान होगा। अंग्रेजी से जुड़ करके जो हम किसी और के ज्ञान को अपने यहाँ अनुवाद करके ला रहे हैं, वो विश्व गुरु नहीं बन सकता है जो दूसरों के ज्ञान को अनुवाद करके लाए। विश्व गुरु वही है जो इस नेतृत्व वही दे पाएगा जो अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ हो। मैं यहीं पर रुकना चाहूँगा। आपको बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। भारतीय तत्त्वानाम् आधारेण एव वयं श्रेष्ठ भारतं कर्तुम् इच्छामः। गौरवप्रदम् इदं सत्रं, तत्रापि गौरवं वर्धयितुम् इदानीम् अस्माकं समक्षं समागताः वर्तन्ते अस्माकं मान्याः शिक्षणमन्त्रिणः श्रीमन्तः जितुभाई वाघाणी महोदयः। आपकी उपस्थिति से गौरवमय सत्र इतना गौरवमय बन गया कि हम कल्पना नहीं कर सकते। और आपका बहुत बहुत आभार। आप इस सत्र में अब वो सारा हो गया सर, आप कुछ आशीर्वचन कुछ और इस सत्र में माननीय हमारे जो एजुकेशन सेक्रेटरी जी, अग्र सचिव जी उपस्थित हैं, माननीय हैदर महोदयः, तेषामपि अहम् अत्र हार्दम् अभिवादनं स्वागतं च विहारामि। ये पटेल महोदयः, मान्यः अत्र पद्मश्री विभूषिताः विष्णु पंड्या महोदयः, हीना कीकाणी महोदयः, सर्वे अपि संस्कृतस्य विद्वांसः अत्र उपस्थिताः सन्ति। अत्र वयं गौरवम् अनुभवामः। अद्य यद् चिन्तनं जातं तस्य वयम् अस्माकं विश्वविद्यालये, अस्माकं महाविद्यालयेषु अस्य प्रयोगम् अवश्यमेव कुर्मः। पराविद्या अपराविद्या इति मिलित्वा परम्परा अनुगुणं यद् शास्त्रीय चिन्तनं वर्तते तेन सह आधुनिक विषयान्
विषयाणामपि सन्निवेशं कृत्वा वयं संस्कृतस्य एकं नूतनं पन्थानं करिष्यामः इति निवेदनं। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः गुजरात सर्वकारस्य पक्षतः अहं सर्वेषाम् आभार अभिवेदनं करोमि। धन्यवादः। अग्रे। Thank you so much, sir.